سیکٹر کا جو ان کا اپنا جو سسٹم ہے وہی ان اداروں پہ لاگو ہوتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں. اسی طرح اس ادارے کا بھی آئین ہے جو آپ کے سامنے. بدقسمتی سے ہم آئین پہ پھر یہ کہتے ہیں جب کوئی کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جناب فلانی کو آئین نہیں پتہ اس نے آئین کی خلاف ورزی کی. جو یہ لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے بھائی کہاں کو شک دکھایا ہمیں جہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے. بہرحال چونکہ میں اس ادارے کا صدر بھی رہ چکا ہوں 2013 سے 17 تک. جی بالکل. یہاں پہ 3 جو امپورٹنٹ عہدے ہوتے ہیں وہ بائی بیلٹ ان کا انتخاب ہوتا ہے جی جس میں صدر جو اس ادارے کا ہوتا ہے اس کو ووٹ سے منتخب کیا جاتا ہے, بائی بیلٹ منتخب کیا جاتا ہے. اسی طرح جنرل سیکرٹری صاحب وہ بھی بائی بیلٹ سے بنایا. اسی طرح چیئرمین الیکشن بورڈ وہ بھی بائی بیلٹ سے اس کو بنایا جاتا ہے. وہ کوئی ایسے نہیں جناب ہم ساتھ ہے ایسی کوئی بات نہیں. نمبر 3 چیئرمین الیکشن بورڈ کا جو کام ہوتا ہے جو مین کام ہوتا ہے, کام تو بہت ہوتے ہیں, جو مدعا ان کا جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ الیکشن کرانے ہوتا ہے. ہمارے جو اس سے پہلے جو صدر صاحب تھے یا جنرل صاحب ان کا ٹرم ختم جب ہو گیا تو اس کے بعد ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم الیکشن کرائیں. اسی حوالے سے ہم نے ایک شیڈول نکالا بھائی 22 اور جو بھی امیدوار وپار منڈل کے الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ 22/8/2022 کو اپنے فارم انتخابی فارم دفتر خاصہ سے لے سکتے ہیں. مطلب 22/8 کو ہم نے الیکشن کے لیے جو بھی امیدوار اس انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ان نے فارم حاصل کیے. اسی طرح ہم نے 24/8 کو سبمیشن آف فارمز فارم داخل کرنے کا جو ہم نے ڈیٹ دیا وہ 24 تاریخ کو دیا 24/8 کو. اسی طرح اس کا پھر اس کے بعد جانچ پڑتال ہوتی ہے, فارموں کی جانچ پڑتال کوئی صحیح ہے درست ہے کیا ہے کیا نہیں. اس کے لیے ہم نے 25 اور 26 تاریخ رکھی تھی. جی. اس کے بعد 27 تاریخ کو ہم نے ودراول آف فارمز کوئی ودرا کرنا چاہتا ہے اس طرح سے. اس کے بعد ایشو آف سمبلز ووٹر لسٹ وغیرہ وہ 29 کو تھا. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے جب فارم ہمیں 22/8 کو دیے ایک مرحلہ ہمیں ہو گیا ہمارا. دوسرا مرحلہ 24 تاریخ کو آئے جس طرح فارم جس وقت امیدوار فارم لے کر آئے اور جب ہم نے فارم 22 تاریخ کو وہ 14 امیدواروں نے یہاں سے فارم لیے جس میں سے 7 امیدوار نے عہدے صدر کے لیے فارم حاصل کیے, 7 امیدواروں نے عہدے جنرل سیکرٹری کے لیے فارم حاصل کیے یہاں سے. اور وہی لوگ 22-24 کو یہاں فارم داخل کرنے آئے بڑے چکچاو کے ساتھ جلوس کے ساتھ. اپنا جو گھر کو ان کے متوقع تھے اپنے تاجر بھائی ساتھ تھے جو ان کے سپورٹ تھے. 13 فارم جناب 4:25 تک ہم نے حاصل کیے. جو 14واں فارم تھا وہ جناب جو گروپ یہاں پہ آیا جو اس وقت بازاروں میں بڑے جلوس نکال رہے ہیں کہ جو ہمارے فارم اس طرح ہو گئے. 4:30 بجے وہ یہاں تھے, 5 بجے کا لاسٹ ٹائم ہے 12. وہ جب ہمارے یہاں پہ پریزائڈنگ افسر بیٹھے ان کے پاس جاتے ہیں جب ہم فارم دیتے ہیں فارم جو ہمارا ویلڈ ہوتا ہے وہ پہلے میں آپ کو کیونکہ بڑا کنفیوژن ڈالا گیا ہے. جی. یہ ہمارا ویلڈ فارم کیسے ویلڈ فارم ہے, اس پہ اتھارٹی کی سیل ہوتی ہے, ادھر بھی سیریل نمبر ہوتا ہے, یہاں بھی سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جو سیریل نمبر ہوتا ہے جب ہم نے عہدے صدر کے لیے یہ الگ فارم ہے, عہدے جنرل سیکرٹری کے لیے یا اس کا بھی سیم ہی یہ پروسیجر ہے کہ سیریل نمبر وغیرہ اور یہ لیگل پر یہ ہم 500 روپے کے یوز امیدوار کو دیتے ہیں. اس پہ لکھا بھی ہے. اس وقت انہوں نے بازار میں یہ کیا کہ جناب چیئرمین صاحب نے ہمارے فارم ریجیکٹ کیا, یہ بولتے ہیں سیل اینڈ سگنیچر نہیں تھے. اس کا بھی میں آپ کو واضح کر دوں. جب یہ فارم بھرنے کے لیے آئے جس کو ہم نے عہدے اس کے علاوہ ہم نے ان سے ریسپٹ لیا جو ہمارے پیڈس پہ موجود تھے, ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ کورٹ میں کیس موجود. جی بالکل. ہم وہ پیپر صاحب اس لیے ہم آپ کو پلان پیپر. جی بالکل. اچھا کیا ہے خراب کیا ہے اس پہ ہم نے ریسپٹ دیا کہ ہم نے جی عہدے صدر کے لیے انڈر دس سیریل نمبر فارم حاصل کیا. اب اسی سیریل نمبر کے تحت ہمیں اس پریزیڈنٹ صاحب کا فارم واپس لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ فارم واپس لیتا ہے اس پہ دوسرا سیریل ہم دیکھتے ہیں اور عہدے جنرل جو جس کو پریزیڈنٹ کا فارم بھرنا تھا وہ جنرل سیکرٹری کا فارم بھرنا تھا. جی. لوگوں میں یہ کنفیوژن یہ کرتے ہیں جی سیل تو یہ جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ریجیکٹ کیا اس پہ سیل اور سگنیچر نہیں تھے, یہ تو ان کو ڈالنی تھی, یہ تو ہم نے ہی ڈالنی تھی, ہم نے پہلے ڈالی تھی, ہم نے بعد میں یہ نہیں ڈالی تھی. جو آپ نے پہلے فارم لیے تھے وہ درست تھے آپ کے, اس پہ سیل بھی تھے سگنیچر بھی جو 22 تاریخ کو. جی. جو پھر جب یہ آئے یہاں پہ جب ہم نے دیکھا
यहाँ पे इंकशाफ हुआ कि वो हमसे तो गलती हो गई, हमने तो सदर के बदले जनरल सेक्रेटरी, और ये एक के साथ नहीं हुआ। ये 4 जो इनने फार्म लिए थे, इनके 2 अपने थे, 2 कवरिंग कैंडिडेट्स थे, 4 के 4, जिनके जनरल सेक्रेटरी उन्हें सदर बने थे 12, इनके साथ 200 लोग यहाँ थे जी। 13 फार्म हमारे पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स के जमा थे जी। 13 तो 14 7 कैंडिडेट्स जनरल सेक्रेटरी के साथ उसके, हाँ सॉरी 10 थे हमारे पास, 4 इनके थे, 10 कैंडिडेट्स। उस वक्त बोर्ड का हमें ये कहा गया कि आप हमें फार्म दे दें। बोर्ड वालों ने ये किया कि हिकमत अमली ये की कि इनको अगर हम फार्म नहीं देंगे यहाँ तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी, यहाँ हमारे पास अमानत है 10 उम्मीदवारों के फार्म में भी ये गायब कर दिए जाए। तीनों ग्रुपों के बदले 200 लोग साथ थे, वो आप वीडियो देखते थे फेसबुक पे, कुछ पाए उनके ही वीडियो। हमने ये किया, हमने कहा इनको फार्म दे दीजिए। हिकमत अमली क्या था हमने, क्योंकि हमने दफ्तर को भी बचाना था, बारामूला टाउन की में लाइन और क्रिएट कोई सिचुएशन ऐसी खराब ना हो जाए, वो पहले अपनी जान का खतरा भी था। ठीक है, जब हमने फार्म को इनकी कम अकली ये भी नहीं देखा, हमने एक प्लान फार्म इनको दी जिन पे कोई इस तरह की सिग्नेचर्स नहीं थे, जो ये कहते हैं तो बाद में देते थे, पहले की सिग्नेचर। अच्छा, उन्होंने ये जब फार्म भरे हमने लिए, बहरहाल वो चले गए। जब हमने फार्म चेक किए, दोनों फार्म जांच पड़ताल 25-26 को, अल्लाह का शुक्र है, एक तो ये गलती थी और भी बहुत गलतियाँ, ऐसी गलतियाँ। अब जो ये फार्म जिसको हम कहते हैं हमारे पास तो डुप्लीकेट फार्म है, ठीक है, बिल्कुल इस पे उम्मीदवारों के दस्तखत होने चाहिए, इस पे भी ऐसा ही है। कुछ फार्म ऐसे, एक तो ये गलती, फिर उम्मीदवारों के दस्तखत भी नहीं, क्योंकि उसमें टर्म्स जो मस्ट है ये ज़ाब्ता इखलाक लिखा है, बिल्कुल गवाह, कुछ पे गवाह भी नहीं, विटनेस भी नहीं है, कुछ पे तायद कुनंदा नहीं है, बहुत सारी गलतियाँ। लेकिन उन्होंने लोगों को कंफ्यूज किया। वो दूसरे दिन जुलूस निकाला, जी व्यापार मंडल चेयरमैन हाय हाय चेयरमैन चोर है बदयात है। ये आप लोगों को फैसला करना है। अगर हम चोर है भाई उनको बोलो, आप तो रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं कर रहे, आपने तो 4 फार्म आप नहीं भर सके। जो सदर के लिए फार्म लेते हैं वो जनरल सेक्रेटरी के लिए, जो अपने आपको वेल क्वालिफाइड कहते हैं। अच्छा इशफाक साहब, ये जो है दूसरे फार्म लेते हैं वो वहाँ से। आप मेरी बात सुने पहले जी, क्योंकि लोगों में कंफ्यूजन पैदा किया गया है। मैं वही बात करना चाहता हूँ, पहले मुझे बात करने दीजिए। जो जनरल सेक्रेटरी का फार्म है उस पर सदर बढ़ता है, जो सदर का फार्म है उस पर जनरल सेक्रेटरी, और कैंडिडेट्स के मुख्तलिफ फार्म, बहुत सारे फार्म, कुछ जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने साइन नहीं किया है, ठीक है जी, और कुछ पे मैनिफेस्टो भी सेम ही है, ठीक है, वो ऑन रिकॉर्ड है, वो कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सील एंड सिग्नेचर वो इसलिए हम पहले बोलते हैं उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो फार्म ये थे जिसको हमने पर्दा किया था, हमने कहा था ये गलती हम लोगों में नहीं की, क्योंकि इज्जत रिजी के लिए हम नहीं बैठे। लेकिन चूंकि ये मार्केट में गए और इखलाक से हम इखलाक से नहीं गए गिरेंगे जी, ये फार्म इसको हम डुप्लीकेट तस्वीर, क्योंकि इस पर अथॉरिटी के साइन है, अथॉरिटी का सीरियल नहीं है, उसी को हम सील एंड सिग्नेचर करें जो पहले होने चाहिए थे। चेयरमैन साहब का साइन भी नहीं, चेयरमैन का साइन भी नहीं, स्टैम्प भी नहीं है, सील इस पर सीरियल। ये फार्म उन्हें भरे, ये पहले उनको देखना चाहिए था भाई ये फार्म सही है कि गलत है। जिस तरह ये ओरिजिनल फार्म है, ये डुप्लीकेट फार्म है, ये बाद में चेयरमैन को नहीं ना, ये पहले देखना था। नंबर 1, ये लोगों में इन्होंने कन्फ्यूजन पैदा किया। आगे बताएं। उसी से हवाले से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो ताजिर बरादरी है और बारामूला के लोग हैं, क्योंकि आपको पता है व्यापार मंडल के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था व्यापार मंडल का इलेक्शन, लग रहा था कि बड़ा इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि मैंने खुद पिछले इलेक्शन में आपने देखा मैंने पूरा अनाउंसमेंट किया है इस इलेक्शन का, मैं पूरा इसमें जानकार हूँ। तो लोगों में जो तजब्जुब है इस टाइम पर, मैं चाहता हूँ कि आपकी वसादत से वो लोगों के जहनों से निकल जाए और उनको एक अच्छी छवि दिखे हमारे व्यापार मंडल। लोगों को कंफ्यूज किया गया कि व्यापार मंडल की गलती है, वो मैंने आपको क्लियर किया कि उसने डुप्लीकेट फार्म भरा, उस पर जो हमारे फार्म है उन पर पहले हमारे साइन होते हैं, सीरियल नंबर होते हैं। सवाल व्यापार मंडल का नहीं है, सवाल इलेक्शन बोर्ड का। इलेक्शन बोर्ड की, इलेक्शन बोर्ड ही व्यापार मंडल है जी। मतलब जो व्यापार जो इलेक्शन बोर्ड पर उंगलियां उठाई जा रही है, व्यापार मंडल का है, यहाँ पे केयर टेकर प्रेसिडेंट है जी, केयर टेकर है जी, जो अथॉरिटी है वो इलेक्शन बोर्ड है यहाँ। तो लोगों से आप क्या कहना चाहिए? लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल इलेक्शन बोर्ड जो है ये 4400 दुकानदारों की रिप्रेजेंटेशन करती है। जो गालियाँ पड़ी है वो उन्हें व्यापार मंडल को दी है, जो इधर जिस दायरे का है हम कहते हैं कि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे जी। कोर्ट फैसला करेगा, लोग फैसला करेंगे। कोर्ट से बड़ा जो है हमारा बड़ा कोर्ट है वो आवाम है, आवाम बिल्कुल। व्यापार मंडल इलेक्शन बोर्ड न कभी बदयान था न करेगा। अलबत्ता हम किसी के चोरी पे या किसी पे बदयांती पे या किसी को इस तरह इल्ज़ाम या नाराबाजी से ये नहीं कहेंगे कि जी हम सही है जी। वक्त फैसला करेगा, हमारे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है किसने क्या किया है जी। और जो सील एंड सिग्नेचर जो है मैं वो गलत बात पे से गिर गया
वो बिल्कुल सही बात है मेरी, उनको पता नहीं है फार्म भरने का, ये क्या रिप्रेजेंटेशन 5-6 हज़ार दुकानदारों की करेंगे, जिनको 4 फार्म जो पहले ही मरा था वो इनको भरने नहीं आए। सबसे पहले रिपोर्ट नंबर 2, मैं भी खुद प्रेसिडेंट रहा, बिल्कुल 4 साल में प्रेसिडेंट रहा, फिर मेरे जब मैं दोबारा इलेक्शन में मेरे खिलाफ मोहम्मद अशरफ गनाई साहब ने इलेक्शन जीता, हाँ बिल्कुल, जब मैंने कभी ये नहीं किया जी मैंने हारा, या जब मैं इलेक्शन में उठा मेरे सेक्रेटरी साहब एक उठे थे, जनरल सेक्रेटरी साहब इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन उसके बशीर अहमद माकूम साहब थे, उनका साइन मैच नहीं हुआ, उनका फार्म रिजेक्ट हुआ उस वक्त। हमने एक्सेप्ट किया नहीं, इलेक्शन बोर्ड जो एक मोतबर इदारे का बोर्ड है, हमने उसको ये नहीं बोला कि आप चोर हैं तो आप एक गलती थी कैंडिडेट की, उसको आपने एक्सेप्ट कर दी। इससे ये नहीं चलता है कि आप लोगों को कन्फ्यूज करेंगे। लोग देखें, लोग अगर किसी अवाम को, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, इनकी बात इन्होंने कोर्ट में केस लिया है, कोर्ट ही फैसला करेगा। उसके बाद जिस ताजिर को भी कुछ पूछना, वो बोर्ड के किसी फर्द से पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है, देख सकता है भाई गलती का है जी। चूंकि मैट्रिक फार्म में 12th में मैट्रिक पूरे अनपढ़ लोग नहीं थे, जब उनके फार्म देखे कोई BSc लिखता है, कोई MSc लिखता है, वो लिखने की बात देखे तो दस्तखत भी नहीं फार्म पे की है। अच्छा, सदर के बदले जनरल सेक्रेटरी का फार्म, जनरल सेक्रेटरी के बदले सदर का फार्म, उनको क्या लगता है बोर्ड बिका हुआ नहीं है, ना बिकाव है, न बिकेगा। कोई किसी की गलती पर्दा हमने किया था, हमने कहा था नहीं हम पहले भाई है फिर व्यापार बन रहे, क्योंकि हम दुकानदारी की सिलसिले नहीं करें, देखिए हमने आज दुनिया में मजबूर किया कि हम लोगों के सामने सच रखें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट में चले गए, उनका जमहूरिया है और बहुत अच्छी बात है, कोर्ट हमारे लिए मुकदम है, वो जो फैसला, वो जो भी फैसला वहाँ से आएगा वो हम उसको तस्लीम करेंगे, दिल से तस्लीम करेंगे, मन दल से तस्लीम करेंगे। उसके बाद भी अगर सुबह कोर्ट में वो गए, हमें जनाब स्टेट्स को आता है, उसके बाद भी वो बारामूला में हंगामा करते हैं, जुलूस करते हैं, मार्केटों से गुजरते हैं, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉन वोटर्स की थी। उसमें एक और कैंडिडेट भी थी, आपकी वसादत से उसको कहना चाहता हूँ, मसूद अहमद करीब सर, जिसने 2-3 दफ़ा इलेक्शन लड़े वो व्यापार मंडल के, जिनको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, उनका फार्म भी रिजेक्ट हुआ। क्यों हुआ? उसके साथ मैनिफेस्टो नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं उन बकौल उनके, उन्होंने परसों ये कहा कि जनाब मैं वहाँ गया, वहाँ फलानी जावेद अहमद सारे साहब हैं, उनको मैंने कहा मैं बाद में भेजूँगा। ये क्या महल्ले का इलेक्शन था? जब मैंने अपने इस मेंबर से पूछा जनाब ये क्या दबांच में उसने मुझे कहा ऐसे 8 ट्रांसफर था, ये बचेगा वही कल इसका सदर आएगा, जबकि इस पर लिखा हुआ है, जब इस पर लिखा है इसके रूल्स है, ये कोई महल्ले का इलेक्शन नहीं है, ये व्यापार मंडल बहुत बड़ा इलेक्शन होता है और यहाँ के लोग भी इससे वाबस्ता है। बिल्कुल, ताजिरों के अलावा लोगों को भी बड़ी उम्मीदें इससे वाबस्ता है, बहुत ज़्यादा होती है, मैं इसलिए आपसे कह रहा था। हम किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, जो हक का फैसला होगा, जो खुदा के नज़दीक हक होगा, हम उसी का साथ। बाकी जो कहते हैं कहने दें, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमारे पास हर चीज़ का सबूत है, हर चीज़ का। सील एंड सिग्नेचर भी गलती है इनकी, सदर के बदले जनरल सेक्रेटरी के बदले सदर, वो भी गलती है, कैंडिडेट्स के साइन भी नहीं है, वो कोर्ट में फैसला हो जाएगा। और लोगों को उनको खुद अगर इनमें ज़मीर होता, पहले ये बेशर्म लोग जो जुलूस नहीं निकालते, बद अखलाकी नहीं करते, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। इन्होंने इसी इदारे के खिलाफ जुलूस निकाला जिस इदारे के कल को ये हेड करना चाहते थे, हम जी प्रेसिडेंट बनेंगे, वो उनको सोचना चाहिए। बाकी कोर्ट में गए, जो कोर्ट का फैसला हो वो हमें तस्लीम होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।